request our honorable principal ma'am to please go through the session. Please welcome her once again with great round of applause, all of you, please. So we are discussing about the proficiency in reading and understanding numeracy. Okay. So this is all about FLN, foundational literacy and numeracy. Here you will see that low learning level, increased dropout and inappropriate language and mathematical skills. These are the data of many schools where they have done research, where the government had done research, and they have found that the children are not apt according to the up to the mark where they have to be, है ना, वो उतना पढ़ लिख नहीं पा रहे हैं. They are not able to read, they are not able to understand numbers, count. So it's not about all students, but few, those who are backbenchers. And these all things, what is the planning of NEP? It's all about the backbenchers. It's not about those who are doing well in their studies, because they are already good. But what about those students who are left out, who are always in worry how they will perform? These the plannings are for them. Now next one. Universal FLN objective, making learner competent in doing meaningful reading and writing by the time they enter grade 3. Now I request Narendra sir to show these books so that we can do something practical. You give it here, sir. Here, if you will see, open my book. Such as for the English teacher, I am saying, a poem is there. Every night mama gives me a kiss and she hugs me close like this. Every night I wait for her hug and then I sleep snug as a bug. So just see here. I will ask the subject teacher of class 1. Honestly, you give me answer that can your backbenchers will read it properly? Say yes or no. No, because we have not considered them for that. We are in a hurry to complete the syllabus. But now it's essential, it's urgent, it's compulsory for us as teachers that the students should read in class 1 these 4 lines. Previously, what we are doing? We are teaching them a poem which they know, or they learn, just they are learning without understanding. If you are teaching them twinkle twinkle little star, how I wonder what you are up above the world so high, like a diamond in the sky. We are teaching it in the class, in the nursery, pre, LKG, and also in pre 2 classes also we are teaching this. But we have to think that what we can take from this poem, how they will understand some other thing with this poem. As few teachers came here and with Ringa Roses, in the counting activity they have done with the Ringa Roses. In the same way, other activities also related to solar system. So that thing
we have to in the twinkle twinkle, no, the twinkle twinkle star. The child thinks, okay, the star is bright and it's twinkling. How I wonder what you are, up above the world so high like a diamond. Now, here you see, the person who has written this poem, he or she wants to teach also the same. But we have not considered it. In our practical classes, I was also nursery teacher, I have also taught the same thing, the poem with action. But now we have to think the poem in that way. Correlation of number, like diamond shape, and twinkle, a song, means relation of subjects we have to do in our day-to-day teaching. That is important. This what we are saying, activity-based learning, teaching steps as well as poems. In this way, reading habit also, it will also enhance the reading habit as well as the clarification of diamond shape. So in this way, we have to teach them in such a way that they will, in fun, they will learn. Developing skills among the learners to amalgamate their outside school experiences in their classroom learning to attain foundational literacy and numeracy in a better way. Now a question arises, what are the outside experience of a child which he or she will include in his classroom activities, such as you may ask, beta, you are eating roti or chapatis. How many chapatis you are eating? They will say 1 or 2. It means their day-to-day habit is eating chapati, and through this we will teach them number that I am eating 1 chapati or 2 chapatis. In this way, in junior classes, in junior level, we have so many activities which we can include in their teaching. Next. Pedagogy should include play, and experiential activities. What I am telling, that NEP 2020 is all about experience, about activity to do and learn. And we are watching so many videos of KVs or many other schools, even the schools in remote area. I will show you one video related to that, so that you will better understand what we have to do. Because I am also watching many things, so that I can get the knowledge of what I have to do now as a principal, as a leader of our school. Because it's all about changing ourselves. If we are rigid, stubborn, that we will not change, it will not help us. So here, pedagogy should include play and experiential activity. So if you will say that in senior classes, how we will include play. So anybody can explain about it? How in senior classes you will explain about in play method you can do some activity in maths or science or social science or maybe in other subjects. In accountancy, commerce subject, ma'am? You can take a point. Where the student is coming from passing 10th examination and they are in 11. So commerce is a very new stream to them. So first thing, of course, we do make them familiar with the words associated with commerce. So we can use collection games. Earlier in the session I have already explained. For example, partnership. Then we can give them a visual with part, then nurse,
फर्स्ट वर्ड नर, शिप, जहाज का एक पिक्चर बना दिए, तो तीनों मिलकर बन गए पार्टनरशिप। तो ऐसे ऐसे करके कनेक्शन गेम के थ्रू हम लोग उनको फेमिलियर कर सकते हैं मतलब सीनियर क्लासेस में। Very good. So don't think that I am senior, I am junior. Just now I got a message from COE Patna in our DTC group that nobody is senior or junior when you are a resource person. When you are going in, when you are attending something, you are only participant. When you are doing something or giving training, you are resource person. You are not a principal or teacher or PRT, TGT or like that. So we have to think like in that way. Without thinking about ये तो बच्चों का काम है, मैं यहाँ क्यों हूँ, ये बच्चे पढ़ेंगे मैं क्यों करूँ, तो ये जो है ना ये माइंडसेट को हमें हटाना होगा, तभी लर्निंग विल बी सक्सेसफुल एज वेल एज मीनिंगफुल। तो इस तरह से अगर हम बच्चों के साथ बड़ों के साथ भी अगर कुछ एक्टिविटी करें, क्या बड़े बच्चे हमने जब हमारे बचपन में हम जब स्कूल आते थे, one good example, we have so many things we have, and the colors, crayons we have, and when we are going in senior classes, what we have with us, only two colors, blue and black. So the students' life is colorless, they don't have colors with them. So you have to fill color in that life also. For that, this is NAP 2020. Now, next one. Yes, reading. Now we will go as we are going to have foundational literacy. We have limitation in time, so we will go with it. Reading for joy. Reading is comprehension. Writing for various purposes. Writing reflects child's experience. So how a reflective, do you think about the reflective writing in senior classes? For the students, how you will plan a reflective writing, English teachers, in senior classes? You can answer, anybody can answer. Reflective writing reflects child's experience. Here it is written. So how we will develop that reflective experience through writing? What way we will design the curriculum or instruct the child for reflective experience or writing? By giving them pictures, showing pictures. Yes. Picture, Showing is the, yes, what pictures, showing pictures to write. Write about some notes. Understanding the pictures and that is right. And point If you them. want, the best way of it is, For example, in commerce, we give the student a task to accomplish that what a cashier is doing in the bank. Go and survey that, put the notes and come with the idea that what are the works that are done by the cashier. Then you can make the case on the same basis. very good example. Now for English, it is good that if Interpreting any visual. yes, interpreting visual, very good. Then the next is going for a trip. In science, field event, project event, Whenever they are going outside for some surveys, for some adventurous tour, they can write it. So in this way, they will enhance the knowledge of science also, and at the same time, they will enhance the writing experience also. Reflective writing, diary entries are also good. Diary entries are there. So it is also a type of reflective writing. So this is also very important that writing reflects child's experience, listening and speaking with comprehension.
Writing for various purpose. Now only my question is for class 10th and 12th teacher, those who are teaching in 10th and 12th, how you will find or what changes you have observed in the question paper for enhancing the reading habit of the student in science, especially in science. Which type of pattern government or CBSE has changed to enhance the capability of science, the capability of reading among the students? Case-based study. Case-based study question. Yes. Now we have in all humanities also, if we are going for commerce also, and science. Everywhere there are case-based questions. What is this case-based question? This is all about reading that question and understanding the concept, and after that giving answers. So we are finding it that CBSE has changed his pattern. Just this is the time that we have to change according to CBSE. Now this next one, competent in counting. See here, pictures are also given and books also you will see. It means the books are also planned according to foundational literacy and numeracy. But still what we are doing, we are just teaching them. So we have to do something else also, add something else also in our teaching. So in this way, competent in counting development of number sets. Here see, you are doing it, junior class math teacher. See it. This type of questions are you giving in your class? Yes or no? Those who are teaching in junior class math teacher, Juhi ma'am, are you giving this type of question to them? But not just you have to give question, you have to make them understand also which are the same. Pre-counting stage is also there. Pre-counting. What is pre-counting stage? Who will say? Pre-counting stage is about differences such as tall, small, big, white, black. So why this is important for nursery students? Those who are teaching in junior classes, they will answer why this pre-counting stage is important in nursery classes. Because they should know not only about quantity, they should know about the quality also. The quality of a thing, it's tall or short. But it is related to adjectives. But it is also considered in numbers also. This is pre-counting stage of a child. We should know about it. Application basic operations on number for problem solving. We are giving them words problem. Next, numeracy and mathematical understanding, pre-number concept, that spatial understanding, space, size and position, as Rakhi ma'am has explained already about that. In geometrical shapes are there. Cube, square, cuboid, rectangular shape. So these are the mathematical vocabulary, numbers. These all things should include in foundational stage of a child, and it is necessary, compulsory, that at least 90 to 95% of your class should know about this. Next. Experience with physical object. Now you see experience with physical object. Then spoken language, L for spoken language that describe the experience, भौतिक वस्तुओं के साथ अनुभव. कैसे हम लोग करेंगे भौतिक वस्तुओं के साथ अनुभव? अगर बच्चों को करना है तो हम क्या उनको दे सकते हैं?
कोई सॉलिड लिक्विड गैस ऑलरेडी आप लोग अपने क्लासेस में करते ऑलरेडी हमारे यहाँ, बिकॉज वी आर द स्कूल we believe in activity based learning, so you all teachers are doing all this in your class. So now picture that represent the experience. I see 4 apple and here symbols 1, 1, 2 cardinal ordinal numbers, written symbols that generalize the experience. Next, integration of literacy and numeracy, mathematical terminology as a part of daily language, use of language in understanding mathematical ideas, language for disposition of mathematical thinking, communication, language, precise communication, language with mathematical ideas, language with mathematical ideas. That you have 4 apples, I will take your 2 apples, how many apples are left with you? So this is what? This is precise communication, language with mathematical ideas. Next, school preparation module, preparatory class or Bal Vatika. Module 3, as Rakhi ma'am has explained that 3 months there will be preparatory classes where there will be no written work. No written work, because if the child will on the first day they will, if he is getting or she is getting a lot of written work, it means he will lose interest in his studies. So first thing is that you have to prepare their mind for taking or understanding the things which is coming on the way. And then as second is elements of SPM, sounds, words, alphabets. As in our communication classes also, we are teaching students A and R. A and R. B, ba. C, ka. Means not only the alphabets but the pronunciation, as Dinesh Viskarma sir is teaching to the students of junior classes about the pronunciation of the letters. So alphabets, colors, shapes and numbers stand along Anganwadis. Anganwadis is co-located with school, pre-primary. These all are the modules which are included in foundational literacy and numeracy. Next one. This is very important. Health and nutrition. That you have to teach. Maybe the student is from nursery or pre or maybe a class 12. In PTM, we are doing? You are giving results. You are discussing about their performance in the class. But have you discussed about the tiffins they are bringing or not? Have you discussed that they are bringing healthy food or junk food? That also few teachers are doing. And if you are not doing, then you have to do it, because health and wellness is the first priority of CBSE schools. As COE is always engaged with different programs and trainings related to health and wellness. So health and wellness is important and you have to teach them for their mental and physical well-being. Regular health checkups and health cards. You will give, maybe you can come with the suggestions how we will make health cards for them, how we will reward them for if they are bringing nutritious food in their tiffin. This we can include to motivate the student to bring healthy food in their lunch box. Then energizing breakfast in addition to midday meal, boosting mental and physical health. Next one, resources. Where you will get these resources? Setting up school and public libraries, because we are the resource of sending all good message to society, schools. Then digital library, workbook, national book promotion policy, all these are Diksha
we all know about Diksha now because we are doing trainings also from Diksha and Nishtha. So we are knowing about it, and in this way these are the resources which will help the child to get information and the teachers also about foundational literacy and numeracy. Next, peer tutoring. All viable method will be explored to support teachers in the mission of attending universal FLN. One-to-one peer tutoring is extremely effective for learning, not just for the learner but also for the tutor. One-to-one peer tutoring means what? Here what it is explained. One-to-one peer tutoring is extremely effective for learning, not just for the learner but also for the tutor. What it is explained here? It is explained about if you are observing the child, you will get knowledge of many things. Yesterday, one child came to me for the admission process, and a little one, she will take admission in nursery. And I asked her, what is your name? She told about the name. And when I asked, you want to take chocolate? And I have with me pulse. मेरे पास पल्स और एक्लेयर्स था, तो वो बोली ये तो खट्टा वाला है. तो she has that realization that this is sweet and this is sour. तो ये सब जो बेसिक थिंग्स है ना, अभी हमें बच्चों को सिर्फ बेसिक्स ही सिखाना है जो बच्चों में अभी तक बहुत सारे बच्चों में डेवलप नहीं हुए हैं. उन बेसिक चीजों को बच्चों को सिखाना है. It can be taken as a voluntary and joyful activity for fellow students under the supervision of friend teacher. Every literate members of the community could commit to teaching one student how to read. It would change the country's landscape very quickly. This is very important line. Every literate member of the community. Now we are telling not only about the teachers. All the stakeholders are equally responsible for the teaching or understanding or learning of the students. One student every literate member of the community could commit and teaching one student how to read. It would change the country's landscape. If you will test the risk of that student जो पढ़ नहीं पा रहे और जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन उसे डर लगता है, उस डर को अगर एक बच्चे का आप भगा देते हो, अगर उस डर से निकाल देते हो, then you are an ideal teacher. Next, this is repository of open resources. These are the resources which we will get. E-Pathshala learning on the go. High quality resources you can get it in Diksha portal. Next, assessment, purpose of assessment. Learning outcome assessment is joyful and integrated pedagogy. Assessment of learning, assessment in learning, assessment as learning, assessment of learning. Now one by one any teacher can, maybe few of you can explain assessment for learning. What do you mean by assessment for learning? Assessment for learning का मतलब हम क्या समझते हैं इसके बारे में? Assessment for learning. लर्निंग के लिए असेसमेंट, हमको देखना है कि बच्चा अभी तक कितना उसको पता है. तो असेसमेंट फॉर लर्निंग मतलब जितना उसने पढ़ा है उसके बारे में पता करना है. ठीक है, कि वो उसने कितना पढ़ा और मुझे कितना पढ़ाना है. ये क्वेश्चन जब आपका राइज होगा, हाँ इवैल्यूएशन, कि अभी आप पता कर रहे हो और उसको आपको कितना पढ़ाना है, then you will do assessment for learning. Then it's assessment in learning. Assessment in learning मतलब assessment in learning का मतलब होता है कि आपने जो पढ़ाया
वो उसने कितना ग्रास्प किया। आपने जो पढ़ाया, सोचिए कि आपने एक पेज पढ़ाया तो एक पेज में उसने 2 लाइन समझा कि 4 लाइन समझा। इनडायरेक्टली जो हम टेस्ट बोलते हैं, यस, दैट इज असेसमेंट इन लर्निंग। असेसमेंट एज लर्निंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा असेसमेंट करें तो ये असेसमेंट एज लर्निंग को हम कैसे करेंगे? थ्रू ऑब्जर्वेशन। अगर हम बच्चे को ऑब्जर्व करेंगे तो हम उसका असेसमेंट एज लर्निंग, उसके बारे में लर्न कर रहे हैं। तो ऑब्जर्वेशन जो टाइप है वो असेसमेंट एज लर्निंग है। इट्स अ टाइप ऑफ असेसमेंट एज लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग। जो बच्चे ने पढ़ा, जो आप उसने सीख लिया, उसके बारे में आपको जानना है, उसका एक रिजल्ट बनाना है। दैट व्हाट वी आर डूइंग, दैट इज असेसमेंट ऑफ लर्निंग। रिमेनिंग 3 और सबसे मोस्ट इज इम्पॉर्टेंट इज असेसमेंट एज लर्निंग। उसको हमने अभी तक इंक्लूड नहीं किया है, जिसे हमें आपको सबको इंक्लूड करना है थ्रू बिहेवियर चेंजेस ऑफ द स्टूडेंट। थ्रू बिहेवियर चेंजेस ऑफ द स्टूडेंट। एडेप्टिव असेसमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट, स्कूल बेस्ड असेसमेंट, ये तो आपको पता ही है, स्कूल बेस्ड असेसमेंट एंड फॉर्मेटिव असेसमेंट भी पता है। नाउ आई विल आस्क, the class is silent, so can anybody give answer about adaptive assessment? What is adaptive assessment included in NEP 2020? It was not before that. अडेप्टिव असेसमेंट जो है ये NEP 2020 में इंक्लूड किया है। तो ये अडेप्टिव असेसमेंट क्या है? अगर हम लोग अडेप्टिव असेसमेंट की बात करते हैं, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अडेप्टिव असेसमेंट, द वर्ड अडेप्ट, अडेप्टिव असेसमेंट इज व्हाट इज अडेप्टिव असेसमेंट? हम क्या समझ सकते हैं? अडेप्ट का मतलब तुम्हें पता है। अडेप्ट वी नो दैट। मैम, बच्चे जो देखकर सीख रहे हैं, जो क्लास में जैसा एनवायरनमेंट देख रहे हैं, जैसे टीचर कर रहे हैं, उनके अकॉर्डिंग वो अडेप्ट कर रहे हैं अपने आप को, तो वो अडेप्टिंग असेसमेंट है। वेरी गुड। अडेप्टिव असेसमेंट मींस असेसमेंट ऑफ द चाइल्ड ड्यूरिंग द क्राइसिस टाइम, ड्यूरिंग द टाइम what happens nowadays in our present world. There are wars, there are so many diseases, there are so many mishaps in everybody's life. How the child will adapt a new situation in this crisis situation? वो जो क्राइसिस सिचुएशन है उस समय वो अपने आप को किस तरह से अडेप्ट करेगा। Then how during the COVID time, is a good example. During the COVID period, what happened? Pandemic, everywhere there is lockdown, and the time means everything was changed. But now CBSE, why CBSE is talking about mental health? Because from that time they are observing few students, they have lost their parents. और उस समय वो जो पेरेंट्स उनके चले गए अचानक से, तब CBSE को ऐसे बहुत सारे ये मिले कि जहाँ बच्चा जो है पढ़ने में बहुत अच्छे होने के बावजूद वो कुछ नहीं कर पाता। एंड देन वी हैव वन एग्जांपल इन आवर स्कूल आल्सो। दिस ईयर इन क्लास 12, वन गर्ल इज देयर, वेरी गुड इन स्टडीज, and her parent came one day that my child is not going to give her board exams. Why? Yes, because she is not ready to give that examination, but she is brilliant in her studies. What happened to her? She is not adapted to new situations, new challenges. She is not adapted to accept the failure, and for that reason she has some mental disturbance. तो ऐसे बच्चों को जब छोटे से आप सिखाएंगे
और वो कैसे सिखाएंगे? आप बहुत सारे YouTube वीडियोस देखेंगे जहां बच्चे को सिखाया जाता है कि कैसे आप हर्डल्स को क्रॉस करोगे। अगर अर्थक्वेक आ गया, अर्थक्वेक हो गया, अचानक से आप स्कूल में हो, बाहर हो, तो आप किस तरह से उस समय अपने आप को प्रोटेक्ट करोगे। तो इस तरह के एडेप्टिव असेसमेंट को भी करना जरूरी है। वी हैव टू डू इट बिकॉज इट इज इंक्लूडेड इन CBSE. So we have to do it and we have to prepare our child for that. Action points: curricular revamping, pedagogical innovations, restructuring of teacher education program, then administrative support and revisiting assessment. These all if you will do, you will complete the universal foundation literacy and numeration. So these all are related to foundational literacy and numeracy. Next, implementation of FLL. These are the prioritized higher priority to universal FLL. Then setting of national mission by MHRD team. You have to include your team is, if you are teaching in class 1, all class 1 teachers come together, plan something, do something, take out the student outside, but if before, not without planning. You have to, if you are taking them outside for leave and flowers, to show them grass, leaf, flower. 26, 27, we have to complete the universal foundational literacy and numeracy. Next. Thank you. Now one video is there. Before that, I want to say, मैं क्या कर सकती हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ। अगर हम ये सोचें तो आपके पास वो पावर है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। यू आर द क्रिएटर ऑफ दिस वर्ल्ड। सो डोंट थिंक दैट आई एम इन अ मीन जॉब, मैं एक टीचर हूँ, क्या कर सकता हूँ, क्या कर सकते हूँ। एंड दिस वीडियो इज ऑल अबाउट क्या कर सकते हैं। स्टार्ट। और उपस्थिति बढ़ी। स्कूल प्रबंधन कार्य में भी सुधार किए। इन्हें बतौर शिक्षक राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जाता है। ये है वेस्ट बंगाल के डॉक्टर चंदन मिश्रा, जिन्होंने AR/VR जैसी आधुनिक तकनीक को शिक्षण का हिस्सा बनाया, जिससे स्कूल का नामांकन बढ़ा। छात्रों ने इंस्पायर पुरस्कार जीता, कला उत्सव में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, संयुक्त राष्ट्रीय परियोजना सूचना में भी भाग लिया और राज्य स्तरीय स्कूल खेलों में पुरस्कार अर्जित किया। डॉक्टर चंदन मिश्रा को बतौर शिक्षक राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जाता है। ये है मध्य प्रदेश रतलाम की सुश्री सीमा अग्निहोत्री। जब हम अपने विद्यार्थियों को उनकी पारिवारिक स्थितियों को समझते हैं तो उन्हें बेहतर पढ़ा पाते हैं। सुश्री सीमा अग्निहोत्री ने जॉयफुल लर्निंग का माहौल बनाने के लिए ICT की मदद से टीचिंग लर्निंग मटेरियल तैयार किया। सबकी पढ़ाई में रुचि बढ़े, इसलिए समुदाय को शामिल कर कहानी पढ़ने की प्रतियोगिता, समाचार पत्र लेखन, नाटक और नृत्य प्रतियोगिता आदि का आयोजन करवाया। शिक्षा के प्रति इनके समर्पण को सरकार ने सराहा और उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया। मदुरई तमिलनाडु के शारीरिक शिक्षा के अध्यापक डॉक्टर T. गॉडविन राजकुमार बॉक्सिंग व योग जैसे शारीरिक गतिविधियों द्वारा अनुशासन, लचीलेपन, टीम वर्क और गोल सेटिंग जैसे बुनियादी सिद्धांतों पर जोर देकर छात्रों के समग्र विकास को बढ़ावा दे रहे हैं। इनके इसी समर्पण को सराहते हुए इन्हें राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जाता है। विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए दिव्यांग मॉडल स्कूल की स्थापना करने वाले सीतामढ़ी बिहार के श्री द्विजेंद्र कुमार उन्हें उनकी रुचियों और आवश्यकताओं के अनुसार संगीत और गायन जैसे दिलचस्प तरीकों का इस्तेमाल कर पढ़ाई को सरल बना देते हैं। साथ ही महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दों पर जागरूकता फैलाने हेतु प्रशिक्षण शिविर और सेमिनार भी आयोजित करते रहते हैं। इनके प्रेरणादायी कार्यों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जाता है। जब जुनून को बदलाव
प्रयास करने पड़ते हैं। यही चुनाव दिल्ली लक्ष्मी नगर की शिक्षिका सुश्री आरती कानून को मैंने छात्रों को सरल सुगम शिक्षा देने के लिए अनेक शिक्षण नवाचार अपनाए। PM ई विद्या, ई पत्रिका, एग्रीटेरियन, मिशन बुनियाद जैसी पहलों में इन्होंने सक्रिय भागीदारी दी। इन्हें बतौर शिक्षिका राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जाता है। सबको शिक्षा, अच्छी शिक्षा, लुधियाना की श्रीमती भूपेंद्र कोडिया का भी ऐसा ही मानना है। इसलिए इन्होंने स्कूल का ढांचा खास जरूरत वाले बच्चों के अनुरूप बनाया। स्कूल का फर्नीचर इस प्रकार बनवाया जो सीखने में सहायता दे। अपनी शिक्षा प्रणाली में कई नवीन तरीका बनाए। इन्होंने गणित को आनंदमय बनाने के लिए जियोजेब्रा, माइनक्राफ्ट और कबूट का इस्तेमाल किया। भूपेंद्र कोडिया को बतौर शिक्षिका राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जाता है। सामाजिक कार्यों में रुचि रखने वाले ओडिशा के श्री सुभाष चंद्र राव माई बुक माई बटी, सैटरडे 0 पीरियड एक्टिविटीज और रीड बेल एंड ड्रिंक वाटर जैसी गतिविधियों से छात्रों की सहभागिता को बढ़ावा देते हैं। उन्होंने रिंग द बेल एंड ड्रिंक वाटर का मिशन शुरू किया। जब भी कोई शिक्षक या शिक्षिका कक्षा में आएंगे वो बोलेंगे स्कूलों से ड्रॉप आउट्स घटाने के इनके सफल प्रयत्नों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जाता है। विज्ञान सिखाने का सबसे सरल तरीका है उसका अनुभव कराना, और ऐसा ही करते हैं चंडीगढ़ के श्री संजय कुमार। हमने साइंस और मैथ के जितने कंसेप्ट हैं उनको आउटडोर पार्क में लेके आए हैं, क्लासरूम से हम उसको बाहर लेके आए हैं। इन्होंने कई नवाचार किए, अपशिष्ट पदार्थों से विज्ञान और गणित पार्क विकसित किया और शिक्षक को छात्रों के लिए सरल और आनंदमय बनाया। श्री संजय कुमार को बतौर शिक्षक राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जाता है। अन्नामय्या आंध्र प्रदेश के श्री अंजनी यूलू छात्रों को नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल और आवासीय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के लिए मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। ग्रुप डिस्कशन और रोल प्ले जैसी इंटरैक्टिव गतिविधियां अपनाकर पढ़ाई को आनंदपूर्ण बनाने की इनकी पहल को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जाता है। बिहार की कुमारी गुड्डी ने सामाजिक और आर्थिक So, this is मेरे पास भी एवरी ईयर आता है कि यू कैन नॉमिनेट टीचर्स फॉर नेशनल अवार्ड. So, I have to show something to them, and I expect, I hope that my teacher will do something different so that I can put it in that columns that my teacher have done this and you will get that award. This is my hope. Okay? And this is the final session. So we are in happy mood. We will do some other activities also. Now over to Siddharth sir. मैम का सेशन इतना इंटरेक्टिव था, कम से कम स्टैंडिंग ओवेशन के साथ Patiently listening me and doing all the activities. Now the last session will be entertained by PGT Chemistry, Mr. Siddharth Kankar. Please welcome him with a great round of applause. Thank you, ma'am. Thank you so much. First of all, a very warm good afternoon to one and all. Respected Principal Ma'am. Thank you, COE Patna. Thank you, Principal Ma'am. Thank you, STN, our school, for giving me an opportunity to express my view on the crucial topic and the very बहुत जरूरी टॉपिक आज के सेशन के लिए असेसमेंट 2020। आज का पूरा टॉपिक और पूरा डिस्कशन FLN में हुआ है और मैम का दो चीज़ों पे बहुत बेसिक ध्यान दिया था, चाहे राखी मैम हो चाहे प्रिंसिपल मैम हो। एक तो पहला ये बात कि हम
सिर्फ सिलेक्टिव बच्चों के लिए कोई असेसमेंट प्लान नहीं बनाएंगे, हमारे लिए कोई वंचित बच्चे नहीं रहेंगे। एक तो इस पे जोर दिया गया है, और दूसरा बात असेसमेंट के तरीके जो हमारे पास क्लासिक तौर में मौजूद है उसमें किस तरह रिफॉर्म ला सकेंगे। मैम ने बहुत सारे एग्जांपल्स दिए, सब चीज को हम उसको आगे लेवल पे मैं लेके जाऊंगा जहाँ पे आप असेसमेंट के बारे में सीखेंगे। असेसमेंट 2020 में क्या रिफॉर्म्स है, क्या चीजें हैं, उन चीजों को हम बारीक दर बारीक डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम लोग क्लासिक कंसेप्ट की तरफ जाते हैं और क्लासिक कंसेप्ट से इस चीज को लाते हैं, फिर हम आपको छोटे छोटे हिस्सों में इसको एक्सप्लेन करके बताएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल असेसमेंट मूल्यांकन। अगर मूल्यांकन को परिभाषित करें हम तो छोटे शब्दों में ये नहीं कहा जा सकता कि केवल छात्र छात्राओं का मूल्यांकन की विधि स्पेशली टीचर्स के लिए भी होती है कि हमारा जो एफर्ट होता है, हम जो एफर्ट करते हैं एक सेशन में, उसका रिजल्ट क्या निकलेगा। तो ये सिर्फ किसी स्टूडेंट का मूल्यांकन नहीं होता है, ये टीचर्स का भी मूल्यांकन होता है। इसीलिए असेसमेंट पैटर्न को बहुत बारीकी से बनाया जाना चाहिए और रीडिजाइन होना चाहिए। अब हम क्लासिक कंसेप्ट की तरफ से जाएं, जैसे हमने एक स्टार्टिंग पॉइंट में अर्ली एजुकेशन जिसमें सामू सर ने बोला गुरुकुल, तो ऑब्वियसली हम ट्रेडिशन से आते हैं, तो हमारा पूरा पीरियड फ्रॉम गुरुकुल्स, आफ्टर दैट सत्संग्स, आफ्टर दैट मुगल एम्पायर, 5th सेंचुरी, देन सागर कमीशंस, धीरे धीरे आते आते हम लोग एक इंग्लिश सिस्टम पे आ गए जहाँ पे सेकेंडरी एजुकेशन, मैट्रिकुलेटर एजुकेशन, हायर एजुकेशन, इस तरह से सिस्टम्स को लाए। तो बिफोर डिस्कसिंग कि हम क्या रिफॉर्म लाना चाहेंगे या एनईपी 2020 असेसमेंट में क्या रिफॉर्म आना चाहिए, वी मस्ट हैव टू सम आइडिया ऑफ आवर ओल्ड ट्रेडिशनल कमीशंस। द फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव गो थ्रू, सभी बीएड से गुजर चुके हैं, तो ये तीनों कमीशन के बारे में हम लोग कुछ कुछ बातों को जानना चाहेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें थोड़ा सा आपका हेल्प भी लेंगे कि आपकी क्या आइडियोलॉजी है इस पे। फर्स्ट कमीशन इज दैट राधा कृष्ण कमीशन ऑफ 1948 to 49. Any idea about this commission? Anyone? About Radha Krishna Commission? Sonu sir? राधा कृष्ण कमीशन सर, हम लोग का कंट्री को जब इंडिपेंडेंस मिला तो इंडिपेंडेंस के बाद पहला कमीशन था। इससे पहले एजुकेशन सिस्टम हम लोग का कंट्री में एक चीज क्या होता आ रहा है कि जैसे जैसे गवर्नमेंट चेंज होते गया, अभी किसी और का सरकार है, इसके बाद किसी और का सरकार आया, तो जैसे जैसे गवर्नमेंट चेंज होते गया उसी तरीके से एजुकेशन पॉलिसीज जो है वो एजुकेशन पॉलिसीज भी कंटिन्यूसली चेंज होते रहे। कमीशन हम लोग का कंट्री में बेसिकली अगर देखा जाए तो फर्स्ट टाइम स्टार्ट हुआ था 1854 में गुड डिस्पैच से। इससे पहले 1834-35 का लगभग एक आया था जिसको हम लोग बोलते थे डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। तो डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी जब लाया गया था तो उस समय ये सोच कर लाया गया था, उसका बेसिक फंक्शन यही मतलब सोच कर लाया गया था कि इसमें हम लोग क्या करेंगे कि जो अपर क्लास है उस अपर क्लास को हम लोग किसी तरीके से एजुकेट करते हैं। अगर हम अपर क्लास को एजुकेट कर देंगे तो वो लोअर को क्या करेगा, अपने आप एजुकेट करेगा। तो इस तरीके से हम लोग को जो कंट्री है तो उसका एजुकेशन रेट जो है वो रेट में इंक्रीजमेंट होगा। बट बोलते ना कभी कभी हम लोग सोचते कुछ और है, वो कुछ और जाता है, ठीक है, कि हर चीज जो है एज पर आवर प्लान नहीं चलता। तो वह कुछ वैसा ही वहां पे भी हुआ। तो जब डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी एक्चुअल में लाया गया तो अंग्रेज का ये सोचना था कि हम लोग क्या करते हैं, अपर को ध्यान देते हैं, पहले इसको एजुकेट करते हैं, इसको एजुकेट करेगा, ये अपने से लोअर को करेगा, वो अपने से लोअर को करेगा, और इस तरीके से क्या होगा, एजुकेशन रेट मेरा इंक्रीज होगा। बट ऐसा चला नहीं। लोअर अपर क्लास जैसे ही एजुकेट हुआ तो वो अपने आप को सुपेरियर मान लिया कि हम ये तो हम इसको कैसे पढ़ाएं, ये मेरा बराबरी करेगा, माइंड सेटअप हो जाता है। इसके बाद हम लोग फिर डिस्पैच पढ़े तो
इस तरीके से कमीशन बढ़ता गया, चलता गया, और फिर फाइनली जैसे इंडिपेंडेंस मिला तो फर्स्ट कमीशन हम लोग का यूजीसी आया सर। यस सर, थैंक यू फॉर योर। ऑब्वियसली ये सभी कमीशन जैसे जैसे आए, जैसे हम लोगों ने कहा इंडिपेंडेंस के समय जब कमीशन आया तो वो यूनिवर्सल ब्रदरहुड, इंटीग्रिटी, स्पिरिचुअल, पॉलिटिक, लीडरशिप, इन चीजों के बारे में जोर देके पढ़ाने के ऊपर जोर दिया गया। आफ्टर दैट मुंडारियल कमीशन आया। इस कमीशन में सबसे पहले हायर सेकेंडरी। 1 minute. Ours is the longest written constitution. Things written a lot, but practical in ground level works are very few and less. We have accepted this कि हमने नियम पॉलिसीज बहुत बनाए, लेकिन एडॉप्शन उसका, आउटपुट उसका बहुत कम हुआ। राधा कृष्ण कमीशन ही पहला था जो एग्जामिनेशन पर फोकस किया था और असेसमेंट चालू किया गया असेसमेंट। वही ये इसीलिए असेसमेंट के लिए ये मेरा कमीशन था, वहीं से ये सब असेसमेंट वर्ड ही आया। मैंने कहा ना पहले ट्रेडिशनल में ओरल, टास्क वर्ड, गुरुकुल में क्या कोई एक्टिविटी दे दिए, इस तरह से इवोल्यूशन मदरसों में ओरल रिक्रिएशन से सब तरीकों से आगे बढ़ाते गए, लेकिन जो असेसमेंट हुआ वो यहीं से स्टार्ट किया गया। उसके बाद जब हम लोग आए मुंडारियल कमीशन में, जहाँ पे आप बांध रहे हैं, इसमें लक्ष्मी स्वामी मुंडारियल जिन्होंने इसको इंट्रोड्यूस कराया था, जहाँ पे हायर सेकेंडरी और सेकेंडरी एग्जामिनेशंस के ऊपर उन्होंने जोर दिया था। फिर हम लोग आएंगे सबसे अच्छा कमीशन जो सोनू सर को बहुत पसंद है, कोठारी कमीशन है कि नहीं, जो सुनील सर का फेवरेट टॉपिक है, जब भी वो क्लास लेते हैं इस पर बहुत जोर देते हैं। दौलत सिंह कोठारी के ऊपर दिया गया था, जिन्होंने गर्ल्स इक्वलिटी, बैकवर्डनेस, हर चीजों को, लैंग्वेज, इन चीजों को अपलिफ्टमेंट में दिया। और को सिस्टम वही मेंटल, फिजिकल, ट्राइबल्स, जैसे भी आप करें, बैकवर्डनेस के लिए एजुकेशन, गर्ल्स एजुकेशन, जो कि आज तक उस चीज को माना जाता है बहुत ब्रॉड लेवल पे। तो आज हम जैसे की बात करेंगे, अगर हम एनईपी का रिफॉर्म लास्ट स्लाइड लेंगे तो लास्ट स्लाइड में भी हम लोग को बोला गया कि इम्प्लीमेंटेशन के लिए हम कभी भी रीजनल लैंग्वेज को छोड़ नहीं सकते। इम्प्लीमेंटेशन के लिए गिफ्टेड चाइल्ड के लिए क्या कर सकते हैं, इम्प्लीमेंटेशन के लिए, तो ये सब वहीं से आता है। कोठारी कमीशन में इसको बोल दिया गया था कि किस तरह हम लोग गर्ल्स, बैकवर्डनेस, ट्राइबल्स, हैंडीकैप्स, इन लोगों के लिए क्या कर रहे हैं। तो इस असेसमेंट को हम लोग अपने ट्रेडिशन से लेते हैं और आज के डेट में। तो सबसे पहला हम लोग डिस्कशन करते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे टॉपिक एनईपी 1968 टू एनईपी 1986 असेसमेंट। ये असेसमेंट विल कंटिन्यू, अभी हमारा 2000 तक के में है। इस असेसमेंट में क्या था, जो मैम ने शुरू में कहा, राखी मैम ने कहा कि सर्टिफाइड कोर्स को हटाना, कि सर्टिफाइड कर दिया कि यू आर सर्टिफाइड ओनली, बस और कुछ नहीं, या आप एलिजिबल है, आप एलिजिबल नहीं है, यू आर यूजलेस, बस सर्टिफाइड है लोग, ये लोग, बाकी लोग नेग्लेक्टेड। इस चीजों को हटाने के लिए तो पहले सेशन में क्या, रिकमेंडेशन टू शिफ्ट द फोकस इवोल्यूशन फ्रॉम सर्टिफिकेशन टू इंप्रूवमेंट इन लर्निंग। पहला चीज सर्टिफाइड कोर्स को हटा के लर्निंग बेस्ड इंप्रूवमेंट के ऊपर हम लोग आना चाहिए। फिर नेक्स्ट अगर देखें, वी आर डिस्कसिंग अबाउट एनपीई 1986, जहां पे एक्सेसिव एलिमेंट का एलिमिनेशन के ऊपर जोर दिया गया, जैसे कि सब्जेक्ट ट्रिक्स, इंप्रेशन मेमोराइजेशन, जहां पे पहला एक सिस्टम जो आप देख रहे हैं सीसी लिखा हुआ है, सीसी का पैटर्न जो है कॉम्प्रिहेंसिव कंटीन्यूअस इवैल्यूएशन। इस सिस्टम में क्या किया गया था, ये सिस्टम के फर्स्ट बैच हम लोग थे, हमारा बैच 2009-10 का बैच सबसे पहला बैच था जिसने सीसी पैटर्न में अपने आप को एग्जाम दिया था, क्योंकि हम लोगों ने पहले परसेंटेज फॉर्म में 9 दिया था और 10 में इसको इंप्लीमेंट कर दिया गया था। कपिल सिब्बल की सरकार के समय हमें एक एप्रिसिएशन लेटर भी मिला था। इसमें क्या किया गया था, ग्रेडिंग सिस्टम लाया गया था, ग्रेडिंग सिस्टम सीजीपीए के आधार पर लाया गया था। उस ग्रेडिंग का यही मतलब था कि फेल्योर हमें नहीं शो करना, किसी को इंफिनिटी शो नहीं करवाना। ये सिस्टम का यही जो, ये सिस्टम बहुत हद तक, ये सिस्टम जो सीसी आज यहाँ पे है, आज यूनिवर्सिटी इसी सिस्टम को लेके चल भी रहा है। आज ये सिस्टम को यूनिवर्सिटी खुद लेके सीबीएसई का रिफॉर्म लेके चलता है, हमें पॉइंटर में ग्रेड देते हैं, उसी तरह का पॉइंट बनाता, परसेंटेज भी बनाता, 6.5, 7.8 करके देता है, और कहीं पे फेल्योर जैसे शब्द नहीं देता। असेसमेंट उस चीजों पे हम लोग देख रहे हैं। आफ्टर दैट हमारा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो किस तरह का डाइवर्जन हुआ, जैसे आपने बोला 1975, 1988, 2000, ये सब चीजों को मैंने जो एक एक करके लिया, सब कमीशन से छोटे छोटे पॉइंट्स लिए गए असेसमेंट को लेकर कि हम देखिए अभी हम लोग क्या क्या रहे हैं, हम लोग रिफॉर्म की तरफ जा रहे हैं। तो रिफॉर्म की तरफ जाने से पहले हम एक बार देख लेते हैं कि हमारा इतिहास क्या है।
क्योंकि उन इतिहासों को हम लोग कंक्लूड करके लेंगे, उन इतिहासों को अगर हम लोग देखेंगे, मेरिट्स पॉइंट डिमेरिट्स पॉइंट एनालाइज करेंगे, उसके बाद एक रिफॉर्म सेटअप होगा कि हम 2020 एनईपी में सही में असेसमेंट करने वाले हैं या क्या करने वाले हैं। in this the NEF at different point of time try to translate a significant recommendation of committee, commission, policy, document into implementation of strategy in the area of teaching, learning, assessment for the qualitative improvement in the entire school education system. तो obviously first इस नेशनल करिकुलर फ्रेमवर्क में किया गया है कि इस पूरे फ्रेमवर्क में कमिटी, कमीशंस, पॉलिसी, डॉक्यूमेंट किन चीजों के साथ टाई अप करके किस तरह हम ऐसे स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट करें टीचिंग एरिया में, लर्निंग एरिया में, असेसमेंट एरिया में, ताकि क्वालिटी इंप्रूवमेंट हो सके। क्वालिटी इंप्रूवमेंट इन द सिस्टम ऑफ एजुकेशन सिस्टम, नॉट इन द स्टूडेंट, इन द सिस्टम ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन सिस्टम में क्वालिटी इंप्रूवमेंट किस तरह किया जाए, तो हम कमिटी के साथ, कमीशन के साथ, पॉलिसी के साथ, स्ट्रेटेजी के साथ टाई अप करके इन चीजों को निचोड़ के एक लाइन अप करके कॉमन प्लेटफॉर्म बना के किस तरह हम एजुकेशन सिस्टम को डेवलप और रिफॉर्म कर सकते हैं या अपग्रेड कर सकते हैं। अब जैसे कि मैम ने स्टार्ट किया था एक चीज, स्लाइड, जर्नी कि स्टूडेंट का असेसमेंट कैसे करें। तो स्टूडेंट का असेसमेंट जर्नी बहुत लंबा है, बहुत लंबा है, जिसे रिफॉर्म में हटाने की बात की जा रही है एनईपी 2020 में। बहुत लंबा है, ओरल, रिटन, पब्लिक एग्जामिनेशन, इंटरनल, एक्सटर्नल, कंटिन्यूअस कंप्रिहेंसिव इवोल्यूशन, कॉम्पिटिटिव बेस्ड एजुकेशन, लाइन से लंबा जर्नी है। जब बच्चा स्कूल में इंटर करता है, इंटर करने के बाद एक लंबा सा असेसमेंट में चलते रहता है। अब वो असेसमेंट में क्या पाया, क्या खोया, क्या किया, उसको भी पता नहीं, उसको भी पता नहीं। प्रॉब्लम, जैसे मैम ने कहा कि हम लोग क्या गेन कर रहे हैं एडेप्टिव असेसमेंट में, तो हम तो यही गेन कर रहे हैं कि जब हम पढ़ाते हैं तो उसको ये भी पता नहीं कि 9-10 में क्या लेके आए, 8-9 को क्या लेके आए, तो क्या फायदा फिर इतना एजुकेशन सिस्टम में जब उसको पता ही नहीं कि 8-9 का एजुकेशन को क्या करना है, तो उसके लिए तो वेस्ट हो गया। जस्ट सेंस अगर उसको यूज नहीं किया तो उसके लिए तो वेस्ट है। तो सिर्फ एजुकेशन में असेसमेंट ये नहीं है कि एक बॉर्डर लाइन में बस पार करते जाओ, पार करते जाओ, पार करते जाओ और बस खत्म। यही रीजन है कि एनईपी जो है उसमें ये टीचर स्टूडेंट कुछ भी ले सकता है। वो ये तो मैं इतने हॉच-पॉच में इतने डिस्कशन इसीलिए कर रहा हूँ कि ये सब इतने हॉच-पॉच, इसी चीज को रिफॉर्म में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसका टॉपिक मैंने लिया है कि रिफॉर्म है क्या, क्यों रिफॉर्म करेंगे। तो ये रिफॉर्म इसीलिए करना है कि इसका आउटकम क्या है, कि इतने सारे एग्जाम्स मैंने कहा ओरल असेसमेंट वो जब इंटर करता है असेसमेंट के कारण अपने आप को रखता है, वो सीख क्या रहा है हम लोग तो आज तक नहीं समझे। सीख क्या रहा है, इश्यूज इज दैट कि सीख क्या रहा है, ये लर्निंग एजुकेशन सिस्टम की जरूरत क्या है जब वो कुछ सीखा ही नहीं। जैसे कि मैम ने बोला, एक मैम के, क्योंकि मैम का टॉपिक मेरे से बहुत जुड़ा हुआ था असेसमेंट का, तो मैम ने बोला क्या करेंगे इस सब चीज के जो सीख के, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस टाइप ऑफ साइंस, मैथ, कहाँ प्रैक्टिकल लाइफ में। यही सवाल एनईपी ने उठाया अपनी कमेटी में कि क्या जरूरत है, बच्चा क्यों उसको लेके जाएगा, क्या करेगा उस चीज का, उसको क्या मतलब है कि सोडियम नाइफ से कटता है कि नहीं कटता, क्या डेली लाइफ में उसका यूज है, और कौन सा लिविंग स्किल। तो रिफॉर्म में लाइफ स्किल के ऊपर जोर दिया जा रहा है कि लाइफ स्किल सीखे बच्चा, ये ना सीखे। मैं तो कहा अभी रिफॉर्म में अगर आप पढ़िएगा, हो सके 25 के बाद तो बोर्ड एग्जाम को भी वो लोग डिमोरलाइज, मॉड्यूलेट कर देगा, रिमोल्ड कर देगा। बोर्ड है क्या, कुछ नहीं, जबरदस्ती का प्रेशर बच्चों पे। आउटकम क्या, दौड़ में पढ़ ले रहे, पढ़ के ले आए नंबर, ये क्या उसका आउटकम, आउटकम कुछ नहीं पा रहा। इस चीज का रिफॉर्म आने का मतलब क्या था, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने इस रिफॉर्म को इसीलिए लाया था कि आउटकम कुछ नहीं निकल रहा, बच्चे पढ़ जा रहे आउटकम के ऊपर। तो हम लोग लाइफ स्किल, लर्निंग बेस्ड इस तरह की चीजों पे फोकस करेंगे, एग्जामिनेशन का पैटर्न बदलने की बात करेंगे। Now the next is the topic related to some two phase, content based assessment and competency based assessment। थोड़ा सा आइडिया आपका चाहेंगे, नहीं तो आपको बोर लेक्चर लगेगा, थोड़ा सा आप लोग भी कुछ बोलिए।
कंटेंट बेस्ड असेसमेंट और कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट। स्लाइड नंबर सर बैक आगे पीछे आगे फ्रंट इसके बाद असेसमेंट और कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट, एनी आइडिया? कंटेंट बेस्ड असेसमेंट में ऑलरेडी एक चैनल बना हुआ है, आपको जो कंटेंट पढ़ाया गया है उसी से असेसमेंट करना है। कॉम्पिटेंसी बेस्ड में आप देख सकते हैं अभी केस स्टडीज दिया है, नया नया आपको सिचुएशन क्रिएट करेगा, उस सिचुएशन को आपको हैंडल करना है और उससे असेसमेंट लेगा और उसको आपको जवाब देना है। ये मोड ऑफ असेसमेंट सर ने समझा, ठीक? तो कंटेंट और कॉम्पिटेंसी का मतलब क्लियर हुआ कि नहीं? आप क्लियर कीजिए उसको। मजा तो लगा सुनने में कि केस बेस्ड चाहिए, समझ तो सब आता, समझ है कंटेंट और कॉम्पिटेंसी का मीनिंग क्या है, रियल आप क्या समझे? और रियल लाइफ से ऐड करके उसको सिखाना। किसको? कंटेंट को यूज द कंटेंट जो कंटेंट हम लोग पढ़ रहे हैं उसको रियल यूज द करके उसको पढ़ाना। मेन कंटेंट और कॉम्पिटेंसी का मतलब क्या हुआ वो सब कंटेंट के साथ कंपटीशन को फेस कंटेंट ऑलरेडी यू आर डूइंग कंपटीशन व्हाट that you have to what is use the content that you have that you learn in the competition of life in the ways of life। तो ऐसे एक्चुअल में अगर रिफॉर्म देखेंगे तो रिफॉर्म में हमारे एचआरडी मिनिस्ट्री नहीं चाहता कंटेंट बेस्ड, उसको एकदम कंटेंट बेस्ड क्या है? अगर हम बताना चाहें कि वी हैव टू डिस्कसिंग अबाउट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, बोले इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट होल्ड दिस दैट एंड दैट, खत्म, इट इज अ कंटेंट। बट लेकिन उसको अप्लाइड करके हम बताएं, रियल एग्जांपल जी अप्लाइड करके बताएं, ले गए ग्राउंड में बॉल फेंके खींच के नीचे आ गया, उसको ग्रैब करेगा जल्दी, तो रिफॉर्म में इस चीज को ऐड करने बोला गया। व्हाई वी विल गो थ्रू द कंटेंट बेस्ड, गो थ्रू द कंटेंट बेस्ड, In class 10, 12, question papers are also एप्लीकेशन बेस्ड। तो ये डिस्कशन जो मैम ने इसको चुना सेशन के एंड में क्यों चुना? क्योंकि हम लोग नए सेशन में इस पे फोकस करना है, तब जाके इसी को फोकस करना है। बुक्स का यूज कम करें, वो अपने आप को लगेगा कि क्या फायदा, वो अपने आप धीरे धीरे वो हटते जा रहे हैं। बुक्स का यूज कम करें, ग्राउंड्स का इस्तेमाल करें, किसी भी मोड का एग्जाम्पल करें, आप कैसे भी बच्चों को इंटरटेन करें, इंटरटेन करके इंडल्ज करें, किसी ना किसी सोर्स से वो आपसे लगे रहे, इस चीज के ऊपर जोर देने को रिफॉर्म में कहा गया। कॉम्पिटेंसी में हो गया आप उनको दे रहे हो, वो ग्रैब कर रहे हो और उसका लोकल लाइफ में इस्तेमाल कर रहे हो। कंटेंट का एक प्रॉपर चैनल बना हुआ है, वही बना टू गेट द सर्टिफिकेट। एक क्वेश्चन है, हां मान लीजिए किसी को कंटेंट नहीं है लेकिन उसको कॉम्पिटेंसी का नॉलेज है, वो अप्लाई कर रहा है, तो ऐसा नहीं हो सकता। जैसे कि फ्रूट सैलेड है, उसको मैथमेटिक्स का सारा एप्लीकेशन नहीं पता लेकिन उसको अप्लाई करने आ रहा है, ऐड आ रहा है, सब्ट्रैक्शन करने आ रहा है, बिना कंटेंट का कॉम्पिटेंसी, बिना कंटेंट का कैसे कॉम्पिटेंसी? Shakespeare is the best example. See, he has no degree, no such type of degree, but he is the father of English literature. It is called that though Chaucer is there, but we are considering him because he has versatile writing skills, but he has no content. Means if you have competency, you have knowledge of content. जो मैम बोली वही, कंटेंट हमारे कॉम्पिटेंसी से बनेगा, कंटेंट को हम लोग यूज करेंगे। क्या समझ रहे हैं? हाँ, इसका एग्जांपल कैसे क्लियर कर रहे हैं? और एक एग्जांपल है, आप कुम्हार का एग्जांपल ले सकते हैं। मिट्टी आपके पास भी है, मिट्टी उसके पास भी है, बस उसका कला है कि हर चीज को वो मोल्ड करके चले, तो वहाँ वो कॉम्पिटेंसी इस्तेमाल कर लिया। One more example is a contractor is not educated, but he has made that Jailgora hospital construction. देखिए कंटेंट एक है हमारे क्लास 12 के बायोलॉजी में हेमोफिलिया, ठीक है, इट इज गिवन बाय द सीबीएसई हेमोफिलिया
तो सबसे पहले इसमें कंटेंट ये कह रहा है क्या है इसमें, तो हेमोफिलिया क्यों होता है। जैसे कि ये सबसे पहले इट इज ए सेक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर, ये एक तरह का सेक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर, सेक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर से, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि जो हम लोग का क्रोमोसोम संख्या होता है 46 होता है, 46 में 22 पेयर्स ऑटोजोम होता है, 22 पेयर्स ऑटोजोम होता है, ऑटोजोम मतलब सेम स्ट्रक्चर का क्रोमोसोम होता है, और 1 पेयर जो होता है वो सेक्स क्रोमोसोम होता है, सेक्स क्रोमोसोम होता है जिसको हम लोग एक सेक्स कहते हैं फीमेल के लिए, और मेल में होता है XY। तो दिस इज द कंटेंट में ये है। अब इसमें एक्चुअली क्या हो जाता है, एक क्रोमोसोम जो है एब्सेंट हो जाता है, एक क्रोमोसोम में एक जीन एब्सेंट हो जाता है, जिसके कारण क्या हो जाता है, ये हेमोफिलिया डिजीज क्रिएट होता है। तो सीबीएसई का ये क्वेश्चन है, जैसे मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूं, सीबीएसई का केस बेस्ड क्वेश्चन है, द ह्यूमन मेल नेवर पास ऑन द जीन फॉर हेमोफिलिया टू हिज सन, व्हाई इट इज सो। ये सीबीएसई का क्वेश्चन है, मैं फिर से एक बार बता रहा हूं, द ह्यूमन मेल नेवर पासेस ऑन द जीन फॉर हेमोफिलिया टू हिज सन। हेमोफिलिया का जो पेशेंट है फादर में, वो एक्चुअली सन में क्यों ट्रांसफर नहीं होता है, तो इसका रीजन है, जैसे हम लोग अगर सेक्स डिटरमाइन करते हैं तो जैसे 44 प्लस AA या एक सेक्स फीमेल के लिए 44 प्लस XY, तो इसको हम लोग डिटरमाइन कर देते हैं, इसको पहले ब्रेक कर देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 22 प्लस X एंड 22 प्लस X, ओके। इसको हम लोग फिर इसको डिफरेंशिएट अगर कर देंगे 22 प्लस X 22 प्लस Y, ठीक है। 22 प्लस X 22 प्लस Y इक्वल टू 44 प्लस XY, इधर 22 प्लस X प्लस 22 प्लस X इक्वल टू 44 प्लस XX। क्लियर है। अब यहाँ क्या हो रहा है कि जैसे ये क्रॉस किया, अगर फीमेल मेल चाइल्ड फॉर्म होता है तो ड्यू टू द रिकॉम्बिनेशन ऑफ XY, जैसे इसके साथ क्रॉस हुआ तो क्या हुआ 44 प्लस XY, तो यानी क्या हुआ, इसमें फीमेल में जो है डॉटर में मेल में ट्रांसमिट नहीं हो सकता, फीमेल में ट्रांसमिट हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से ये केस बेस्ड जो है क्वेश्चंस क्रिएट होता है। Thank you. Present by our honorable principal ma'am to just have a clear idea about content based and competency based. Have a look. एजुकेशन से जो जिनका संबंध है, और वो ये कि सबसे पहले तो हर बच्चा खास होता है, ये मैंने डिस्कवर किया अपने रिसर्च में, हर बच्चा खास होता है। हर बच्चे में हमारी तरह, आपकी तरह और हमारी तरह, हर बच्चे में कुछ ना कुछ काबिलियत होती है, कुछ ना कुछ कमजोरी होती है। मुझ में भी कमजोरी है, काबिलियत है, आप में भी कुछ ना कुछ काबिलियत और कमजोरी है, हर बच्चे में कुछ ना कुछ कमजोरी और काबिलियत होती है। और हमें एज पेरेंट्स, एज एल्डर्स, एज एजुकेशन सिस्टम, हमें हर बच्चे की खासियत को पहचानना है, उससे मदद करनी है, उसकी क्या खासियत है, उसका क्या दिल चाहता है, उसे किस चीज़ में खुशी मिलती है, वो हमें उसको हेल्प करना है कि हम उसको वो ढूंढ सकें और उसमें हमें सपोर्ट करना है, और जो उसकी कमजोरी है उसमें हमें उसको सपोर्ट करना है। मुझे अक्सर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स मुझे बोलते हैं कि हम हमारे स्कूल में सारे बच्चे पास होते हैं, हमारे स्कूल में सारे बच्चे फर्स्ट आते हैं, या हम जो बोर्ड एग्जाम है उसमें हमारे सारे बच्चे पास होते हैं। मुझे एक सवाल पूछता है कि हमारे कितने बच्चे खुश हैं। सबसे बड़ा सवाल मेरा ये है, हाउ मेनी ऑफ आवर चिल्ड्रन आर हैप्पी, और वो जो हैप्पीनेस क्वोशिएंट है वो मेरे लिए सबसे अहम है, क्योंकि देखिए पढ़ाई लिखाई तो हम सीख ही लेते हैं। जब मुझे कोई चीज सीखनी होती है तो मैं कुछ ना कुछ करके सीख ही लेता हूँ। हमारी फिल्म 3 इडियट्स
जब रिलीज होने वाली थी, रिलीज से पहले हमने कई स्क्रीनिंग्स रखे थे, टेस्ट स्क्रीनिंग जिसको हम कहते हैं, जिसमें कि हम ऑडियंस जैसे आप लोग उनको बुलाते हैं, फिल्म दिखाते हैं, उनसे पूछते हैं कि फिल्म कैसी लगी। ऐसे एक टेस्ट स्क्रीनिंग हमने किया था मुंबई में, एक फैक्ट्री में कारीगर लोग काम करते हैं, तो करीब 25-30 कारीगर आए थे उस स्क्रीनिंग में। स्क्रीनिंग के बाद उनका एक कारीगर था, उसने मुझसे एक सवाल पूछा। उसने मुझसे ये पूछा, आपने फिल्म देखी 3 इडियट्स? उसने मुझे एक सवाल पूछा जो बहुत कमाल का सवाल था। उसने मुझे ये सवाल पूछा कि सर, पिक्चर के अंत में हमें पता लगता है कि आप तो रणछोड़ दास थे ही नहीं, रैंचो तो थे ही नहीं आप, तो सर्टिफिकेट तो आपको मिला नहीं, वो तो जावेद जाफरी को मिल गया। तो आप इतने बड़े साइंटिस्ट कैसे बन गए? इतने बड़े पेटेंट्स, 400 पेटेंट्स, जापानी लोग आपके पीछे पड़े हैं, तो आपको सर्टिफिकेट तो मिला नहीं, तो आप इतने बड़े साइंटिस्ट कैसे बने? बहुत ही अहम सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। और ये जो मुद्दा है उसके हार्ट में जाता है कि जब मैं एग्जाम के लिए रट के जवाब देता हूं और वो जवाब में मुझे नंबर मिलते हैं और मैं पास हो जाता हूं, तो मेरे हाथ में एक पर्चा आता है जो मुझे कहता है कि मैं पढ़ा लिखा हूं। लेकिन वाकई में पढ़ा लिखा हूं या नहीं, ये अभी तक मुझको श्योर मालूम नहीं। लेकिन जब आप नॉलेज चाहते हैं कि आपको मिले, विद्या मिले आपको, तो फिर वो कागज का मायने कुछ होता नहीं है। तो मैंने उसको जवाब में 2 सवाल पूछे। मैंने बोला उसको कि भैया आपको क्या लगता है मैं अच्छा एक्टर हूं? उसने बोला हाँ, देश भर में आप सब लोग मानते हैं आपको आप अच्छे एक्टर हैं। मैंने उससे कहा कि भैया मेरे पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है जो कहता है कि मैं अच्छा एक्टर हूं, मेरे पास कोई कागज नहीं है जो मुझे बोलता है कि मैं अच्छा एक्टर हूं। मैंने फिर उससे एक सवाल पूछा कि मैंने सुना आप बहुत अच्छे कटर हैं, आपके जो बॉस मुझे बताते हैं कि आप उनके मेन कटर हैं और आपकी बड़ी इज्जत करते हैं, आपके पास कोई पर्चा है, सर्टिफिकेट है जो मुझे बताता है कि आप कटर हो? उसने बोला नहीं सर। तो मैंने बोला आपका जवाब हमको इधर ही नहीं है। एजुकेशन इज बियॉन्ड मार्क्स, एजुकेशन इज बियॉन्ड ग्रेड्स, एजुकेशन इज व्हाट यू लर्न। और मेरी इच्छा है कि हिंदुस्तान में हम एजुकेशन को इस नजरिए से देखें कि हम अपने बच्चों को वाकई शिक्षा दें, और शिक्षा हम खुशी से दें, क्योंकि शिक्षा में सिर्फ ज्ञान नहीं होता, शिक्षा में एक और चीज मिली हुई होती है, वो ये है कि हम अपने बच्चों को डेवलप करते हैं ह्यूमन बींग्स। आगे चल के वो जिंदगी में अच्छे इंसान बने, आगे चल के वो अपने पैरों पे खड़े रह सके, आगे चल के वो इज्जत की जिंदगी जी सके, आगे चल के वो दूसरों के बारे में ध्यान रखे, आगे चल के वो किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट ला सके, आगे चल के वो किसी की मदद कर सके। दिस इज व्हाट वी शुड डेवलप ऑफ आवर चिल्ड्रन। ये मेरी फीलिंग है। मैं जहां भी देखता हूं, ये मेरे साथ भी हुआ है जब मैं छोटा था। जब से हमारे बच्चे छोटे होते, जब से बच्चे पैदा होते, बच्चा घर आता है, हम बच्चे को पूछते हैं भाई मार्क्स कितने मिले, फर्स्ट आए कि सेकंड आए? बोलता सेकंड आए। अरे Now that is clear of my whole concept कि हम लोग करने क्या जा रहे हैं और हमारा रिफॉर्म क्या है, और यही आज का आने वाला भविष्य है। हम लोग अब लिविंग स्किल पे इवैल्यूएशन करेंगे और उसी से ही सर्टिफाइड करेंगे, ना कि पेन पेपर। लेट मी स्टार्ट कि क्या हमारा प्रॉब्लम है। पब्लिक एग्जामिनेशन, सेकेंडरी एग्जामिनेशन, बोर्ड एग्जामिनेशन, एंट्रेंस एग्जामिनेशन आर ईटिंग a way of valuable time for a true learning with the excessive exam coaching and exam preparation, time consuming, फोकस, वो सब कुछ छोड़ छाड़ के एक रूटीन लाइफ जीने लग जाता है, उसको लिविंग लाइफ क्या हो रहा है कुछ का पता नहीं। जैसे मैंने बोला कि किस तरह मेंटल रिटार्डेशन होता है, मेंटल रिटार्डेशन क्यों, किस बात का डिप्रेशन, किस बात का सीकनेस, किस बात का डर, वो हम लोग क्रिएट करके रखे। जो हमारा ओल्ड ट्रेडिशन उसको एक भय बना के रख दिया, उस भय से मानसिक संतुलन एकदम बच्चों का गिरता, मोरल वैल्यू तो एकदम खत्म हो जाता है। उस समय उन लोगों को रियलाइज होता है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या हम अपराधी तो नहीं है। तो उस जगह पे वो अपने आप को एक तरह का सस्पेक्ट मानते हैं। These examination also force a student to learn a very narrow band content material in a single stream. The point is there. कोई वैल्यू नहीं, narrow band, क्या चीज जरूरत है, एक सिंगल स्ट्रीम को लेके पढ़ना है। अब उसका लाइफ में क्या एग्जाम्पल है किसी को नहीं पता,
हम 12th तक किस चीज को लेके जाते हैं, रियल लाइफ में उसका क्या यूज है उसको भी नहीं पता। अब हमारा सब्जेक्ट इसको लेके ढोते हैं, किचन के बाद कहीं यूज ही नहीं होता, हमको लगता है किचन के बाद इसको तो कहीं आप इस्तेमाल ही नहीं कर सकते डे टू डे लाइफ में। अब बहुत ज्यादा इंटरेस्ट पैदा किए तो मेडिकल में जाइएगा तो सोचिएगा ये होगा वो होगा दिस होगा। सर यूज है, मैंने मोबाइल रील्स में देखा है, कुछ केमिकल्स है जिसको नाली में डाल दो तो नाली साफ हो जाती है। तो वो मैंने वही बोला, मैं किचन सब किचन में हम लोग किचन केमिस्ट्री बोलते हैं, वो सब किचन केमिस्ट्री बोलते हैं। आपको पता होगा ये सब करना, दिस ऑल आर द किचन केमिस्ट्री, हैक ट्रिक्स दवाई ववाई सब बनाना, इसको किचन केमिस्ट्री बोला जाता है। ट्रेडिशनल केमिस्ट्री कहाँ यूज कीजिएगा? कभी भी कोई जगह कोई भी इंटरव्यू में एचआर थोड़ी पूछता है कि टेस्ट ट्यूब का साइज क्या था, कि बीकर का एमएल कितना लेते हैं, वो क्या वोडका एंड मेकिंग एथेनॉल। वो फिर देखिए वो कहाँ वो किचन साइंस है, वो तो फिर एक इंडस्ट्रियल्स का है। That's the board examinations be redesigned to encourage the holistic development by a way to discouraging a coaching culture exam preparation। जो बोर्ड एग्जामिनेशन है उसको रिडिजाइन किया जाए सो दैट होलिस्टिक डेवलपमेंट हो, जो मैम कह रही थी कि सिर्फ एक स्तर का डेवलपमेंट ना और सिर्फ एक तरफ से बच्चों को इवैल्यूएट ना किया जाए। ठीक, जो वो कोचिंग प्रेशर से एग्जाम प्रेशर से इन चीजों से दूर भागेंगे। अगर आपको बच्चों को असेसमेंट हम लोग ओवरऑल एनुअल असेसमेंट करेंगे, हर चीजों में उनको ग्रेड करके रखेंगे, ये नहीं कहेंगे कि बोर्ड एग्जाम ही एक सिंगल मैटर है या सिंगल पैरामीटर है, तो देखिए वो अपने एजुकेशन पॉलिसी या सिस्टम को कितने आसानी से लेके चलेंगे। रेट ऑफ डिप्रेशंस विल बी also come. Student be given freedom to choose the range of subject in which they can take a board examination depending on the individual interest। सबसे पहले फ्रीडम देना चाहिए कि कौन सब्जेक्ट की तरफ जाएगा, किसके तरफ जाएगा, कौन स्ट्रीम में जाएगा। ये कोई नई बातें नहीं कह रहे, चाइना इसको अब से अप्लाई करता है, वो क्लास 6 से ही अप्लाई कर देता है, जो जिस फील्ड का उसको उसके तरफ सेट कर देता है। वो लोग शुरू से डेवलप्ड कंट्री अपने आप को डेवलप इसलिए करता है कि वो लोग अपग्रेड तुरंत होते हैं, वो लोग अपग्रेड समय के साथ हो जाते हैं, वेट नहीं करते कि चलो अपग्रेड है। तो 6th स्टैंडर्ड से उन्होंने चीजों को बच्चों को बांट दिया, कैटेगराइज किया, स्पोर्ट्स कल्चर आर्ट्स हर चीजों में बांट के रखा कि बच्चे सिर्फ और सिर्फ अपने एम के लिए जाए। हम लोग बच्चों को सपना जीने बोलते हैं, वो लोग एम क्यों नहीं बोलते, वो एम के तरफ भागते हैं, और हम लोग सपना में रखते हैं बच्चों को, वो सपना में ही रहता है। अब कब सपना टूटे आए वो फेयर जब रहता है, लेकिन हम बच्चों के अंदर एम पैदा करेंगे कि एम है आपका, उस एम को एक सिंगल स्ट्रेटजी से लेके जाना है, जबरदस्ती का अनवांटेड बर्डन लेके नहीं चलना, जो कि रिफॉर्म कहता है। The board examination made easier in sense that they test the primary core capacity competency rather than the content memorization। कंटेंट मेमोराइजेशन के अलावा वो इस तरह की चीजों को इवैल्यूएट करे, कैपेसिटी मेमोराइजेशन, क्या वो लर्निंग आउटकम, मैम ने कहा एडिटिव, किस चीज को लिया, उन चीजों पे एनालाइज किया जाए, ना कि कंटेंट बेस्ड मेमोराइजेशन पे कि एक बड़ा सा पेज का थ्योरम लिख दे। क्या सुनूं सर, एक थ्योरम हो पता नहीं, बर्नौलीज थ्योरम है, गॉस थ्योरम है, ऑन द सरफेस आउट द सरफेस करते रहते, हमको आज तक वो भी समझ नहीं आया था, फिर भी पढ़ के लिखे थे, पर आज तक हमको याद नहीं कि कहाँ यूज किए थे हम। सबको टीचर बोला साइक्लोट्रॉन पढ़ के जाओ, सेट सी में आ गया, सेट बी में आया ही नहीं, वो भी अलग हेडेक हो गया कि वो आया कैसे। तो ये कंटेंट बेस्ड के बहुत नेगेटिव इफेक्ट है। अब बच्चे एक सिंगल माइंड पढ़ते हैं, नहीं आएंगे, हरास हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, इसका एडवर्स इफेक्ट दिखता है। नेक्स्ट स्लाइड। और ये हमने बोल रहा है all student may be allowed to take a board examination on of the 2 occasion, जो नया पॉलिसी कहता है कि 2 ओकेशन वाइज, जिसको शायद सेमेस्टर वाइज लागू भी किया गया था। टर्म 1 टर्म 2 करके हम लोग स्टार्ट किए थे, 1-2 सेशन देखा गया था, 2 सेमेस्टर में इसको स्टार्ट किया गया था। द मेन एग्जामिनेशन 1 इंप्रूवमेंट, एक मेन होगा, एक 1 इंप्रूवमेंट होगा, जिस फॉर्म में चलता है। दिस विल रिड्यूस द कोचिंग कल्चर, बोर्ड विल थिंक टू डेवलप द further viable models of board examination such as annual, semester, modular board examination on a certain subject। question paper must be redesigned। question paper के redesign के ऊपर बोला जा रहा है, उसमें 2 parts में question की बातें की गई है। सबसे पहला multiple objective type question and second is a descriptive type question, लेकिन content based नहीं, सिर्फ और सिर्फ application based, case based, learning based। The NCERTs must concern to the SCERT and the boards, state boards, NAC to just prepare a guidelines on NEP 2020 recommendation। जितने recommendation NEP 2020 दिया है, NCERT एक साथ स्टेट के साथ, बोर्ड के साथ
जितने भी एजेंसी है सबके साथ बैठ के इवोल्यूट करे और क्या चाहता है रिफॉर्म उसको एक रिडिजाइन करे. In order to align with NAP 2020, transforming in assessment by academic 22-23, the guidelines of a teacher education program shall be developed. ये तो मैम शुरू से बोल रही थी कि 22-23 से इसको पार्शियली इम्प्लीमेंट कर दिया गया, जिसको तो वो 24 में तो परंतु इम्प्लीमेंट हो ही गया. इस चीज को देख लेंगे. Now the reforming of board examination, क्या रिफॉर्म लाना चाहती है 9 से लेकर 12. Board examination will be made easier as they will test the primary and core capacity जो मैंने कहा competency based analysis करने के लिए. Visual model to be explored annual semester modular 2-part objective questions जिसको देने बोला गया कि क्वेश्चन सेट जो तैयार होंगे 2 पार्ट के होंगे डिस्क्रिप्टिव एंड ऑब्जेक्टिव इन इक्वल वैल्यू. The guidelines with NCERT, teacher preparation, all these things are the जो मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि ये सभी पॉइंट्स से इस तरह के गाइडेंस पे अब 9 to 12 का क्वेश्चन सेट होगा, जहाँ पे एग्जाम को 2 सेशन की भी बात की जा रही है. एनुअल सेशन कुछ ऐसा नाम दे के रखा नहीं जाएगा, जितना इजियर से इजियर किया जाएगा और थ्रू आउट एनालिसिस होगा. वन टाइम एनालिसिस नहीं, थ्रू आउट ओवरऑल एनालिसिस, होलिस्टिक एनालिसिस होगा, हर चीजों पे हर पॉइंट पे एनालिसिस. नेक्स्ट, For 1 to 8, the census assessment of key, मैम ने बहुत कुछ बता दिया था 1 to 8 के लिए असेसमेंट के लिए. हल्का क्या पॉइंट है, टीचिंग फोकस शुड बी अचीव द एसेंशियल लर्निंग आउटकम्स, मूविंग अवे टू द रूट लर्निंग्स एंड ऑन द रिजल्ट्स ऑफ स्कूल्स. ये सब मैम ने आपको भी जस्ट बताया, क्योंकि असेसमेंट में उन्होंने बताया था किस तरह हम 1 से लेके, उन्होंने तो प्रेप और प्ले स्कूल से भी लेकर इवोल्यूशन बताया, राखी मैम ने भी बता दिया. द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द मेन performance, assessment, review, analyze, knowledge for holistic development. This is the word. This is the word. The Parak, the MU signed with the HRD ministry to just launch this thing. Not to just evaluate a student on a single parameter of the board examination. To just किसी को inferiority महसूस नहीं कराना है. इस बार भी परसेंटेज के फॉर्म में नहीं बनेगा. क्यों? क्योंकि इन चीजें बच्चे एक अलग लाइन पे सेट हो जाते हैं, वो एमलेस हो जाते हैं, वो अपने आप को एक तरह का समाज में अजीब तरह का प्रतीत लगते हैं. ऐसा चीज है नहीं. तो रिकमेंडेशन इसी पे किया गया कि बच्चों को सिंगल एनुअल एग्जामिनेशन पे इवैल्यूएट नहीं किया जाएगा. 24 सेशन में तो एकदम नहीं किया जाएगा. दे विल गिव ऑल लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटी टू जस्ट शो देयर टैलेंट, देयर एम, देयर चॉइस, फोकस, सब कुछ दिखा सकते हैं. वो परख के साथ उसका एमयू साइन अप है. Start with Nipun and go with Parak. Parak. And that's something else. That's something else. The start with Nipun, the junior sec, and end with the Parak. Now there should be a national testing agency will work obviously कि अब क्या प्लान करके रखा है. अब तो इतने रिफॉर्म्स हमने दे दिए, टेस्ट कैसे ले, टेस्टिंग करे कैसे, तो देयर शुड बी अ नेशनल टेस्ट एजेंसी. ऐसे टेस्ट हमारे पास एक पहले से ही है जो जेई और नीट लेते हैं, लेकिन अब वो जेई नीट के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे. अब वो इस तरह के स्कूल बेस्ड असेसमेंट के लिए भी वो लोग रिस्पॉन्सिबल है. वो लोग रिस्पॉन्सिबल है, खाली वो लोग अब जेई और वगैरह करके अपने आप को साइडलाइन नहीं कर सकते. तो will work to offer a high quality of common aptitude test as well as high quality of common subject examination in science, humanities, language, arts, vocational at least twice in a year. 2 बार हर एक सेगमेंट. Serve a primer, expert, autonomous testing organization to conduct entrance examination, undergraduate and graduate admission and fellowship in the higher education. वही एक कॉमन टेस्ट सेट करेगी हायर एजुकेशन के लिए. कोई और टेस्ट नहीं सेट कर सकता. किसी तरह का कोई एजुकेशन प्रोपेगेंडा, बिजनेस पैरामीटर्स नहीं आने चाहिए बच्चों. सिर्फ एक कॉमन पैरामीटर सेट होगा, उसी से ग्रेजुएट, हायर ग्रेजुएट किसी भी एडमिशन के लिए लाइन अप किया जाएगा. यूनिवर्सिटी टू यूज देयर कॉमन एंट्रेंस. नो यूनिवर्सिटीज आर अलाउड टू टेक सिलेक्टिवली देयर ओन एग्जामिनेशन. देयर शुड बी ओनली अ कॉमन एग्जामिनेशन फॉर द एंट्रेंस. Rather to have their own entrance, there should be a district reduce a burden on student. क्योंकि वो एक साथ इतने सारे एग्जाम को देने जाना पड़ता है, 10 जगह उनको मूवमेंट करना पड़ता है. इस तरह की चीजों के साथ वो हटाएं. Individual university and the college should have a liberty to see the value using NTA assessment for their admission. Universities
बच्चों का एडमिशन या बच्चों का एनालिसिस सिर्फ एनटीए के टेस्टिंग मटेरियल से वो कर सकता है। तो इस रिफॉर्म में हमने जो टॉपिक, जो लास्ट पॉइंट है हमारा कि सपोर्ट फॉर अ गिफ्टेड स्टूडेंट एंड द स्टूडेंट विद स्पेशल टैलेंट, ये भी एक बहुत बड़ा एनईपी 2020 का मेन चीज है, जो मैंने बोला कि कोठारी कमीशन से लिया गया। एनईपी 2020 में गिफ्टेड परस्यू ऑफ बियॉन्ड अ रियल स्कूल, जनरल स्कूल, वो अपने आप को परस्यू कर सकते हैं जनरल स्कूल लाइफ से, जो भी उनको चुनना। प्रोजेक्ट बेस्ड क्लब टू इंकरेज एंड सपोर्ट एट ऑल लेवल ऑफ स्कूल, प्रोजेक्ट बेस्ड क्लब जो हमारे स्कूल में चलता भी आया है। ओलंपियाड्स, कंपटीशन ऑफ वेरियस सब्जेक्ट टू कंडक्ट इन द कंट्री लेवल, सो दैट वो अपने आप को इंफीरियर ना समझे, जो टेस्टिंग होता है ऑल इंडिया लेवल पे हो उनके लिए। बीएड प्रोग्राम्स आर अलाउड टू स्पेशलाइज इन द एजुकेशन फॉर गिफ्टेड, बीएड के सेगमेंट में गिफ्टेड स्टूडेंट के ऊपर भी एक पैटर्न या एक सिलेबस ऐड किया जाए, सो दैट बीएड ऑब्वियसली टीचिंग बेस्ड है, तो बीएड के द्वारा टीचर्स को शुरू से ही प्रोवाइड किया जाए कि किस तरह वो गिफ्टेड स्टूडेंट को हैंडल करेंगे। NCERT, NCT will develop the guidelines for education of gifted children. NCERT भी करिकुलम में सेम बुक्स में उनके लिए भी कुछ ऐसे गाइडलाइन सेटअप करे जिससे वो अपने आप को कॉमन स्टूडेंट समझ के पढ़ सके। एक्सटेंसिव यूज ऑफ टेक्नोलॉजी ट्वीट करें, जिसको इसमें मैं बोलना चाहूंगा कि क्लाइंट एआई के ऊपर पूरे सपोर्ट किए गए हैं, एआई के ऊपर ही चलना है 24 में इस बार, और एक बार आ जाएगा हर महीने, अगला हम लोग सेशन जो भी ट्रेनिंग करेंगे उसी पे एआई पे करेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ही ऊपर काम होगा, चाहे डाटा हैंडलिंग हो, चाहे रिकॉर्ड्स हो, चाहे एनालिसिस हो, एग्जाम हो, मार्क्स हो, अपग्रेडेशन हो, सब एआई पे करना है, सब का सब, ताकि एक कॉमन विंडो तैयार हो सके जिससे ऑल थिंग्स आर ट्रांसपेरेंट, सभी चीज उसको शेयर कर सके, जिससे पेरेंट्स टीचर के बीच में ओपन विंडो, स्कूल और घर के बीच में ओपन विंडो सेटअप हो सके। तो एआई के ऊपर इस रिफॉर्म में ध्यान दिया गया है। एफर्ट फॉर इन्वेंशन ऑफ द रूरल एरिया एंड द रीजनल लैंग्वेज टू इंश्योर अ वाइड स्पेस पार्टिसिपेशन। एनईपी 2020 इस बात को जोर दिया है कि रीजनल लैंग्वेज, वहां के लोकल, उनके तरफ एक तरह का इंकरेजमेंट लाए कि वो लोग जुड़े, इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी से वो लोग जुड़े, ताकि एक अच्छा आउटकम पैदा हो सके। तो हमारा एनईपी 2020 एक ई कंक्लूजन रिपोर्ट देता है कि हम असेसमेंट के जितने भी पुराने पैरामीटर्स को लेके चलते आए हैं, अब उसमें रिफॉर्म का समय आ गया है, क्योंकि हम होलिस्टिक डेवलपमेंट के ऊपर जाना चाहते हैं। हम बच्चों को वो पढ़ाना चाहते हैं जो लिविंग स्किल, लाइफ स्किल, जो उसको आफ्टर वर्ड में आप काम सके। ये नहीं कि सिर्फ पेपर में 90 जो का नॉट सर्टिफाइड कोर्स, यू विल जस्ट जज फ्रॉम योर वर्क एक्सपीरियंस कि क्या आप लेके जा रहे हैं। वो कुछ भी एग्जांपल हो सकता है, एक छोटा सा एग्जांपल, तो हमें रियल एग्जांपल में बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा, सो दैट बच्चे वो लेके आगे जाए जिससे वो इस्तेमाल कर सके अपने एम को पूरा करने के लिए, सपने को। दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर। नाउ देयर इज टाइम फॉर। थैंक यू सो मच सिद्धार्थ सर, आपने बहुत ही अच्छे से असेसमेंट वैल्यू को सभी को समझा। प्लीज गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर सिद्धार्थ सर। नाउ इट्स अ फीडबैक टाइम। What we have gained from this 25 hours of in-house training session on different topics, we have concluded in the supreme guidance of our Honorable Principal Ma'am, Mrs. Rakhi Goswami Ma'am, with support of the STNC, Mrs. Rakhi Goswami Ma'am. So each houses are divided already, Mudaliar, then Sadler, Radhakrishnan. Each member of one member will come and explain his views in two minutes. And as an STNC, I request Principal Ma'am to nominate Siddharth sir name as a PRP test. So then when the session will be there, we will go for that session. PRP तो आप सेशन अपना कंक्लूड करके वहां से आपको करना होगा. So now first feedback will be taken from Mudalia. Anyone? Please come on the stage and share your views. Mudalia. Yes, we are running out of time. Please come forward and say your views. Now, Radhakrishnan, anyone come here and say your views, please. Hurry up. Yes, come. Please give
Good afternoon to one and all. First of all, I thank CBSE to organize various capacity building and empowerment program to update the professional competency of teachers. Teachers training courses helps teachers acquire and upgrade their knowledge and skills in their respective subjects and pedagogies. They also help teachers develop critical thinking, problem solving, communication, and interpersonal skills that are essential for effective teaching program. Nowadays, teacher training program offer teachers new methods to keep their classroom and curriculum fresh, exciting, and highly knowledgeable. They also provide access to new styles of teaching. Teachers nowadays become fully equipped with the skills by joining teacher training program and are able to effectively transfer their message to the student. इस टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम में हम लोगों ने खेल में बहुत कुछ एक्टिविटी किए, जैसे हम लोग एक्टिविटी के थ्रू स्टूडेंट्स को भी समझा सके, बहुत आसानी से वो क्लासरूम एक्टिविटी के थ्रू उस टॉपिक को भी समझ सके. Teachers learn new and fun ways of teaching in this teacher training program. This would involve the new games and other methods of teaching to make the concepts even clear to the students. Students would be able to enjoy as well as learn. A teacher is a role model for child and his first guide towards the journey of life. So teacher training is must for becoming the best teacher. Thank you all. Next one, anyone from Radhakrishnan committee? Next, Hartog. There is Hartog. Yes, come please. One member from Hartog. Department of Hindi, anyone? Be quick. Mr. Suma Chope. Always ready to speak. Yes, she is always ready to speak. Thank you, ma'am, to give us a good platform to express us to our views in front of you. As the question arises, why we gained the 50 hours training. हमने क्या पाया इस 50 घंटों की ट्रेनिंग में, और हम 5-5 घंटे बैठ कर कंटिन्यूसली रेगुलर ट्रेनिंग लेते हैं और एक्टिविटी भी करते हैं. तो ये हम इम्प्लीमेंट कहाँ करें, कैसे करें, द बिग क्वेश्चन to us. So, as we know that today's time, 21st century is going on. इस टाइम में बच्चे जो होते हैं काफ़ी प्रैक्टिकल थिंकिंग के होते हैं. जैसे अभी we have finished our last training session कि इस 21st century में बच्चों को रोड लर्निंग को I don't think so हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं सभी बच्चों के लिए. 40 if there is a 40 student in a class, we can't think that कि सारे बच्चे एक साथ एक ही ओपिनियन में हमें आंसर देंगे. So it is big challenge to us. तो इसे क्या करना चाहिए? So we need to personalization to the students. पहले तो उनको पर्सनल हमें जानने की बहुत ज़रूरत है कि वो पर्सनल उनके साथ हमारा कॉप अप कैसा है, हमें पहले वो जानना बहुत ज़रूरी है. फर्स्ट थिंग. सेकेंड, प्रोफेशनल ग्रोथ, देन पर्सनल, फर्स्ट पर्सनल देन प्रोफेशनल. उसके बाद हम उनके पे प्रोफेशनल ग्रोथ पे इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं. अगर बच्चा किसी खास स्किल पे है, उसकी स्किल को पहचानना, आइडेंटिफाई करना, फिर उसके साथ उसको गेन करना, ये हमारा काम होना चाहिए, मोटिव होना चाहिए. जैसे सर ने भी जस्ट कहा कि हमें एम पे चलना है, हमें उस परसेंटेज में बात नहीं करनी, हमें एम पे चलना है. बेटर स्टूडेंट मैनेजमेंट, ये हमने सीखा कि हाउ टू मैनेज द स्टूडेंट इन अ बेटर वे. वीक चाइल्ड, स्पेशल चाइल्ड, very talented child, etc. Build a better relationship with the parents. हमने ये भी सीखा है, हमने connecting with the parents, how to connect with the parents in through the impressive way, कि parents हमें ये समझ पाए, हम parents को समझ पाए easy way से. Impact the thousands of the students indirectly
and the better connectivity classroom management to teach the student in an effective way also. These programs help the student to nurture their skill related the specific domain curriculum. हमें ये सिर्फ हमारा जो curriculum है जो अभी हमें NEP प्रोवाइड कर रहा है, not just to complete our syllabus only, हमें उसे इम्प्लीमेंट करना, हमें आज के बच्चों में वो स्किल डेवलप करना, हम अपने बच्चों को भी आइडेंटिफाई कर पाते हैं अच्छे से। हमारे बच्चे, हम ये नहीं कहते कि वी आर द टीचर्स, आवर चिल्ड्रन आर ऑल्सो टॉपर, शुड बी टॉपर। ये हम बिल्कुल नहीं इमेजिन कर सकते कि अगर मैं टीचर हूँ तो मेरा बेटा मेरी बेटी भी टॉपर हो इन द क्लास। उनमें हम वो चीज़ों को क्या कल्कुलेट करने चाहेंगे, बीइंग अ पेरेंट्स हम ये करना चाहेंगे कि एक अच्छा स्टूडेंट बने, एक अच्छा इंसान बने, सोसाइटी में वो वेल डेवलप्ड हो, सोशल नर्चर उसमें स्किल हो, ताकि लोग उसको काफ़ी रिस्पेक्ट के थ्रू से देख सके। तो सेम थिंग वी कैन इम्प्लीमेंट ओवर आवर स्टूडेंट ऑल्सो। इट ऑल्सो हेल्प अस टू टीच स्टूडेंट इन अ क्रिएटिव वे, इंटरेस्टिंग वे, ताकि बच्चे उसे लर्न कर सके और उसे काफ़ी सीख सके। सो थैंक यू ऑल। Thank you so much, ma'am. I think we have gained a lot from these in-house training programs conducted by CBSE CEO Patna and under the value director as well as Secretary of Women's Sales Dhanbad Sahodaya as well as our honorable principal ma'am Mrs. Runa Dubey ma'am. So please give a big round of applause. Now I request Ajay Chaubey sir to please come on the stage, please. And I request our honorable principal ma'am to please come on the stage. Please ma'am. कहा गया कोई भी जो क्या बोल सकते हैं, युद्ध आप लड़ने जाते हैं तो जो लीड करने वाले हैं उनके बिना आप उस युद्ध को जीत नहीं सकते हैं। तो ये जो 25 आवर्स का इन हाउस ट्रेनिंग प्रोग्राम था वो एक हम लोगों के लिए युद्ध ही समझिए। और इस पूरे धनबाद में जितने भी प्रिंसिपल से आप देख लें, कोई भी इतने एक्टिव नहीं है अपने टीचर्स को ट्रेनिंग करवाने के लिए, लेकिन मैडम लगी रहती है हर जगह, कहीं ना कहीं समय निकाल लेती है। इस समय में हम लोग ये ट्रेनिंग करेंगे, इस समय में ये ट्रेनिंग करेंगे, इस मंथ में ये ट्रेनिंग करेंगे। प्री प्लान फ्रॉम Being XTNC, I am telling you that first in-house training in Dhanbad district is started by our principal ma'am, Mrs. Runa Dubey. तो इनके मैम के जो दूरदृष्टिता है बिना उसके पॉसिबल नहीं है। और आज हम लोग गर्व से कह सकते हैं कि वी हैव कंप्लीटेड द 25 आवर्स इन हाउस ट्रेनिंग प्रोग्राम। यस और नो? तो मैम को बस हम लोग तुच्छ सा भेंट यहाँ प्रेजेंट करना चाहेंगे। आई रिक्वेस्ट चौबे सर टू प्लीज कम फॉरवर्ड एंड प्रेजेंट मैम। सही में मैडम के बारे में ज़्यादा बोलना उचित नहीं है, बहुत ही बोला जा चुका है। मैं चाहूँगा कितना भी शब्द लोग प्रयोग करें मैडम के लिए वो खत्म नहीं हो सकता है। तो मैं चाहूँगा कि हमारे साथ हमारे जागेदर सर भी आएँ और मैडम को सॉल्व करवाएं। सर मैम अगले साल की प्लानिंग भी कर चुकी होगी, कब कब ट्रेनिंग कराना है। Now I request honorable principal ma'am to bless us with her words for this auspicious occasion. Please ma'am. प्लीज सिट डाउन। जैसा कि हमने अभी देखा है वीडियो में, आमिर खान ने कहा कि पढ़ने से ज्यादा, शिक्षा से ज्यादा, ज्ञान से ज्यादा खुश रहने की जरूरत है। और ये खुश रहना सिर्फ बच्चों के लिए नहीं लागू होता है, ये लागू होता है आपके साथ। और मैं समझती हूँ मैं जितना मैं सक्षम हूँ, मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे टीचर्स, मेरे कोलिग्स, मेरे फैमिली खुश रहे। और मेरा विश्वास है कि आप खुश हो और इसी तरह खुशी बांटते रहो, बच्चों के प्यार बांटते रहो और बहुत आगे बढ़िए आप। Thank you so much ma'am. And एक क्लब भी सभी फैसिलिटेटर्स के लिए होना चाहिए, क्योंकि बिजनेस के बिना ये पॉसिबल नहीं था। Now I request Ajay Chaubey sir, academic in charge, to please come here and give vote of thanks, and we will wind up with ease the 25 hours completion.
I am right or not? At least clap for me also. I request the teachers to implement these things what we learn today in primary classes and secondary classes and senior secondary classes, and the assessment we learn from Siddharth sir, that we should do the assessment right way and try to teach the children to face the life hurdles and have a self-confidence in themselves. We should capable of developing self-confidence in themselves by giving them content and competent studies. Okay, sir. सबसे पहले मैं फिर से मैडम का यहाँ पर अभिनंदन करता हूँ और आज का ट्रेनिंग रियली बहुत ही बेहतरीन था और पटना के सीओई और डायरेक्टर को मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हम लोगों को इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया कि हमारे टीचर सक्षम होते जा रहे हैं। ट्रेनिंग से सबसे बड़ा हमारा कुशलता बढ़ा, क्या बच्चों को करवाना है क्या नहीं करवाना है, और हम लोग शायद इसका 50% या 25% भी अपने बच्चों पर लागू करें तो हमारे बच्चे रियल में पहले से फार बेटर होते जा रहे हैं, कहीं कोई कमी नहीं आ रहा है। तो उनको मैं सबसे बड़ा धन्यवाद देता हूँ कि हम लोग को इतना बड़ा ट्रेनिंग करवाते हैं। और आज का टॉपिक्स तो बहुत ही अच्छा था, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी बहुत अच्छा टॉपिक्स था और इसमें हम लोग को बच्चे को असिस्ट करने के लिए बहुत ही फायदेमंद है। कैसे असेसमेंट हो, इन सब के बारे में हम लोग पढ़े आए, जाने आए। तो मैं फिर से कहूँगा कि जो भी ट्रेनिंग में हम लोग करते हैं उसको क्लासेस में बच्चों के साथ इम्प्लीमेंट करें, ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो आज का ट्रेनिंग में हमारे जो 3 मेन थे, हमारे प्रिंसिपल मैडम, एसटीएनसी और सिद्धार्थ सर, इनके द्वारा जो बातों को रखा गया है रियली बहुत ही बेहतरीन तरीका से रखा गया है और सभी को शायद इतना शांतिपूर्वक ढंग से हमारा ट्रेनिंग होता है, कितने इंटरेस्ट लेते हैं हमारे टीचर, ये सबसे बड़ी बात है। और इसको लागू करते हैं क्लास में, मैं देखता हूँ क्लास में भी इस तरह से लागू होता ही जा रहा है धीरे धीरे। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे मीडिया जो ग्रुप है, हमारे विश्वकर्मा सर और जितने भी टीचर्स यहाँ बैठे हैं उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। हमारे सबसे बड़ा हमारे एकेडमिक कोऑर्डिनेटर सर जो है वो इतना ज़्यादा स्टेज पर इम्प्लीमेंट हर चीज़ का करते हैं, मैं देखता हूँ। इनके लिए जोरदार ताली मारेंगे। और जो हमारे 4th ग्रेड के स्टाफ हैं उन्होंने इस रूम को इतना से सजाया है। हमारे अमित सर बोर्ड को किए हैं, मुख्तार सर और भी जितने भी टीचर हैं, हमारे सीनियर टीचर हैं प्रशांत श्रीवास्तव सर, वो भी इसमें बहुत इंटरेस्ट लेते हैं। सोनू सर ऑलवेज आंसर देने के तैयार रहते हैं, बच्चों की तरह करते हैं। सबसे बड़ा बात मुझे लगता है बच्चा ही बनना पड़ेगा, टीचर को बच्चा जैसा बन के ही काम को कर सकते हैं। जो ग्रुपिंग में डांस हो रहा था, म्यूजिक हो रहा था, वो ग्रुप कितना अच्छा से कर रहा है, में हम लोग बच्चे बन गए हैं। इस तरह से सभी बच्चे बन करके ही हमें पढ़ाना है, तभी पढ़ा सकते हैं, डांट करके नहीं पढ़ा सकते हैं। उनको हर एक्टिविटी के द्वारा ही हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं बच्चे को। मैं और विशेष क्या कहूँगा, धन्यवाद सभी को। Now I request Vikram Prasad sir to end this completion of the 25 hours in-house training session with the end of national anthem. Please sir. After that we will gather here for photography and then wind up.